वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? हम लोग अभी तक इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख रहे थे, लाइक वी हैव बीन कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने कैलकुलेट किया, सीखा कैलकुलेट करना, हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, देन वी हैव लर्नड how to compute cost of preference shares, then cost of equity। इनमें भी अलग अलग तरह के सिचुएशंस हम लोगों ने देखा, लाइक कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में इरिडीमेबल देखा, हम लोगों ने रिडीमेबल देखा, ठीक है, विथ फ्लोटेशन कॉस्ट वी हैव सीन, ठीक है। विथ इक्विटी शेयर्स में हम लोगों ने देखा कि देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस वेयर दी shares are having growth percentage given in the question, some do not have that। flotation cost में भी कुछ variety हम लोगों ने देखा। so we have solved variety of questions representing different situations of calculating individual sources of cost of individual sources of capital। from now on हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एक कंपनी जब भी वो पैसा अरेंज करती है फॉर दी रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, वो कंपनी हमेशा अलग अलग सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज़ करती है। द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन नेवर डिपेंड्स ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ कैपिटल। ये एक ऑब्वियस सा सिचुएशन है। If you have an option to raise funds from different sources, for example, if you have an option of raising fund with the help of equity share capital issue, with the help of preference share capital issue, with the help of debentures, with the help of loan from bank, so there are so many options from which you can raise money। so why not use all of these sources proportionately so that we can keep our risk low and we can keep our cost low। and there comes in the concept of weighted average cost of capital। so weighted average cost of capital क्या हो गया? एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे of a situation when the company is raising funds from different sources of capital, और हमारा काम होगा टू कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। एक बार मैं यहाँ पे रीड करता हूँ जो किताब में दिया हुआ है। So far we are concerned with the determination of specific cost of finance coming from different sources like debt, preference share capital, equity share capital, retained earnings to a company। Once such computation is completed for the individual component of capital structure of a company, we can calculate the overall cost of capital or weighted average cost of capital of the company। so यहाँ पे बताया जा रहा है कि the company is having different sources of finance, different sources of capital, in that case the company will be calculating individual cost of capital of different sources, जैसे हम लोगों ने अभी तक कैलकुलेट किया था। we have been calculating different cost of capital of different sources। so एक बार वो complete हो जाए, then our task is to compute overall cost of capital, मतलब इन सबको मिला के हमारा cost of capital कितना होना है। This overall cost of capital is of utmost importance as this rate is to be used in various financial decisions such as the discount rate or the cutoff rate while evaluating capital budgeting proposals of a firm। इस टॉपिक में हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन फिर भी since this term capital budgeting came into the picture while discussing this particular topic, तो मैं एक बार बता देता हूँ। हम लोग जब भी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हमेशा हमारे पास आता है बिकॉज वी नीड फंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों? क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिलेगा, एंड दैट रिटर्न शुड ऑलवेज बी एटलीस्ट इक्वल और मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ दैट सोर्स। सो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए,
तो वो 10 लाख रुपया को अरेंज करने में यू हैव बिन यूजिंग डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, एंड वाइल कैलकुलेटिंग डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल यू केम अक्रॉस अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबको मिला के वो हम लोग सीख लेंगे किस तरह से करना है। सो वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना भी आता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल सपोज वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा आया 15%, तो हमारा जो ये 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इन्वेस्टमेंट शुड अर्न at least 15% or more than 15% to make it feasible for the company, है ना, practically acceptable for the company। so ये practically acceptable for the company तब होगा जब हमारा return from investment is more than our cost of capital। ठीक है, सो ये टॉपिक यहीं तक हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये जो कैपिटल बजटिंग है इट इज़ अ सेपरेट चैप्टर दैट वी हैव इन आवर सिलेबस। वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द सिलेबस इन डिटेल। नाउ इट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिटर्न दैट मस्ट बी अर्नड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू satisfy the requirement of different investors. The overall cost of capital is thus the minimum required rate of return on the assets of the company. This overall cost of capital should take into account the relative proportion of weights of different sources in the capital structure of the company, and therefore it should be calculated assigning weights to capital structure of the company. Specific cost of capital in proportion of various sources of funds to the capital. Now यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ा जल्दी रीड किया, ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग जब डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड यूज़ करते हैं तो उसका एक प्रोपोर्शन होता है, उसका एक वेट होता है। मतलब आपको अगर 10 लाख रुपया चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट, देन दैट अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज़ विल कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बोलूँ कि सोचो 2 लाख रुपया तुमने इक्विटी से रेज़ किया, 3 लाख तुमने डिबेंचर से रेज़ किया, 3 लाख तुमने प्रेफरेंस से रेज़ किया, और बाकी जितना भी बचा, कितना हो गया आपका 3 + 3 6 + 2 8, और बाकी जो 2 लाख बचा आपने वो बैंक से लोन ले लिया। सो देयर आर डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल रेज्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। सो इसी को हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। सो मैं एक बार वापस से बताता हूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है हम लोग इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इंडिविजुअल जो सोर्सेस हैं वो रहते हैं, एंड देन हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ फंड यूटिलाइज्ड फ्रॉम इंडिविजुअल सोर्सेस। इसी को हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखो डिफरेंट स्टेप्स हमें बताया गया है। द कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म KO। ठीक है, अच्छा, इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्सेस ऑफ फंड्स लाइक कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एटसेट्रा। ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू फॉलो व्हाट वी हैव बीन डूइंग टिल नाउ। हम लोग अभी तक जो कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, वी हैव बीन कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज। सो वी विल बी कैलकुलेटिंग द सेम थिंग। पहला हमारा स्टेप वही है। सेकेंड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ appropriate weights to specific cost, that is book value of various sources or market value of various sources etc. to be discussed later on. So ये मैं किताब में भी लिखा हुआ है कि डिस्कस लेटर ऑन, तो मैं कुछ देर बाद ही बताता हूँ, लेकिन एक बार के लिए बता दूँ कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ फंड इज रेज्ड फ्रॉम विच सोर्स, वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कोई 10% हो सकता है ऑफ द टोटल फंड, कोई 20% हो सकता है ऑफ द टोटल फंड, कुछ भी। ठीक है, the third step is multiply the cost of each source by its proportion or weights. Now जो भी weight निकला हमारा, जो भी proportion निकला, that should be multiplied by the cost of capital that we have calculated in the step 1. अब इसको divide करना है total weighted cost by the total weights. तो
तो जो भी कॉस्ट आएगा उसको टोटल वेट से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा. सो दिस इज व्हाट दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का स्टेप्स. लेट अस स्टार्ट विद द सम. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं. A company has the following capital structure and after tax cost for different sources of fund. तो ये क्वेश्चन में कंपनी का sources of fund, proportion of fund और cost of capital सारे information are provided. सब कुछ दिया हुआ है. क्या क्या है एक बार देखते हैं. The company is having different sources like equity share capital is given, retained earnings, preference share capital, debentures. बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब फेस वैल्यू जिसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे 10 रुपए का शेयर है या 50 रुपए का शेयर है या 100 रुपए का शेयर है, मार्केट में कितने में वो बिकेगा, दैट इज मार्केट वैल्यू. देन कम्स रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंपनी हैव kept with it, या फिर unallocated या फिर undistributed profit, या फिर past profit which is not distributed as dividend or kept as reserve, उसे हम लोग कहते हैं retained earnings. This retained earning is a very important source of capital when in need of fund. ठीक है, चलो. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25,000, डिबेंचर 15,000. मार्केट वैल्यू में अगर हम लोग देखें तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग रिटेन अर्निंग्स. क्या मतलब होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो कभी भी मार्केट में इशू नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक है. एंड दैट मनी इज केप्ट बाय द कंपनी फॉर इमरजेंसी पर्पसेस और फॉर रिक्वायर्ड पर्पसेस और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पसेस. So there are different situations when retained earnings will be utilized depending on the situation or depending on the planning of the company. Then preference share capital का market value दिया हुआ है, debentures का भी दिया हुआ है. After tax cost of capital is given 15% for equity, 15% for retained earnings. Remember one thing, equity और retained earnings का जो हमारा cost of capital है ना, वो similar ही होता है. कुछ सिचुएशन है जहाँ पे ये डिफरेंट होता है. पर्सनल टैक्स बोल के एक टैक्स होता है विच वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन. वो खाली एडजस्ट होता है फॉर रिटेन अर्निंग्स बाय कीपिंग इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट एज बेस. हम लोग वो बाद में करेंगे. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% एंड डिबेंचर्स 8%. सो वी हैव बीन आस्क्ड हियर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट्स एंड मार्केट वैल्यू एज वेट्स. हमारा फॉर्मेट यहाँ पे किस तरह से बनेगा पहले वो देखते हैं. ठीक है, हमारा फॉर्मेट इस तरह से कुछ बनेगा. वी हैव टू प्रिपेयर 1 2 3 4 5 कॉलम्स. ठीक है, अच्छा अभी देखो यहाँ हर सेगमेंट में सबसे पहला हमारा आता है सोर्स ऑफ फंड्स, उसके बाद अमाउंट. नाउ हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बुक वैल्यू को एज वेट्स. बुक वैल्यू एज वेट्स बहुत ही इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बुक वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है, बुक वैल्यू मतलब ये वाला अमाउंट हो गया और इसमें इक्विटी का इतना, रिटेन्ड का इतना, 25,000 फॉर प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स का 15,000. सो ये सारे को हम लोग को यूटिलाइज करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट में जाएंगे and we will write 50,000, 10,000, 25,000 and 15,000 for equity, retained, preference and debentures respectively. Now हम लोग इन सबको टोटल करेंगे. ठीक है, हमारे पास टोटल कितना पैसा है वो देखना है. सबको जब हम लोगों ने जोड़ा, क्या क्या हम लोगों ने जोड़ा 50,000 को. ठीक है, हम लोगों ने जोड़ा 50,000 से 10,000 को, देन 25,000 एंड देन 15,000. तो इन सबको जब हम लोग जोड़े तो हम लोग को मिल रहा है 1 लाख रुपीज़. सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड
विच इज़ रेज्ड बाय द कंपनी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ये जो 50,000 है, हम लोग इक्विटी का प्रोपोर्शन निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 1 लाख। तो किस तरह से आएगा ये, मतलब हमारा टोटल कैपिटल है भैया 1 लाख। ठीक है, हमारा टोटल कैपिटल है 1 लाख। अच्छा, लेकिन इक्विटी का कितना है, इक्विटी हमारा कितना है, हमारा 50,000। ठीक है, इंटू 100। तो देखो ये पहला वाला, अगर 100 नहीं करना है मत करो, 100 मत करो, तो कितना आता है 0.5। उसी तरह से हम लोग जब रिटेन्ड अर्निंग्स करेंगे तो 10,000 है ना, 10,000 बाई 1 लाख इंटू 10,000 बाई 1 लाख। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस का जब हम लोग करेंगे 10,000 बाई 1 लाख, तो ये हमारा आ जाएगा 0.1। देन सॉरी, ये हमारा प्रेफरेंस नहीं था, गलती हो गई मेरे से, ये हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स है। ठीक है, ये हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स है। देन हमारा आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि 25,000 है। सो 25,000 बाई 1 लाख, ये आ जाएगा मेरा 0.25। उसके बाद हमारा डिबेंचर्स है विच इज़ 15,000 बाई 1 लाख, ये आएगा मेरा 0.15। इन सबको जब मैं जोड़ूंगा, अगर मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो देखो मेरा कितना आता है, मेरा 0.5, इसके साथ प्लस करते हैं 0.1, देन प्लस करो 0.25, देन प्लस करो 0.15। देखो हम लोग को हमेशा यूजुअली 1 ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारा जो भी अमाउंट है टोटल उसी का प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं, तो उसको तो हम लोग 100% पकड़ ही रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 लाख है इसे तो हम लोगों ने 100 या फिर इसी को तो हम लोगों ने 1 पकड़ा है, यही तो हमारा 1 का वैल्यू है। तो ऑब्वियसली जो वेट्स आएगा ना टोटल में तो वो भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो बुक में भी इसी तरह से कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो 50,000 बाई 1 लाख आ गया मेरा 0.5, देन 0.25, देन 0.15, टोटल में ये 1 आ गया। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोई क्वेश्चन में देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 15, 15, 10 और 8, वही लिखना है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15, 15, 10 एंड 8। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5 को मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 0.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो मेरा ये आता है देखो 7.5, ये आ गया मेरा 7.5। ठीक है, उसके बाद मैं 0.1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.5 से, तो ये आ गया मेरा 1.5। ठीक है, उसके बाद मेरा 0.25 है, तो 0.25 को मल्टीप्लाई करो 10 से, वी आर गेटिंग 2.5। एंड देन यहाँ पे मेरा 0.15 है, इसको मल्टीप्लाई करो 8 से एंड वी आर गेटिंग 1.2। सो दीज आर द डिफरेंट इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, देखो मेरा मैच किया जो भी मैंने लिखा, देखो 7.5 है ना, 1.5, 2.5, 1.2, तो ये सारे मेरे मैच कर गए। अब क्या काम है मेरा, इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करना है। ठीक है, इन सबको हमें प्लस करना है। 7.5 इसको प्लस करो 1.5 प्लस करो 2.5 प्लस करो 1.2, सो वी आर गेटिंग 12.7। अभी क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड आउट दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वेटेड कॉस्ट हमारा यहाँ पे टोटल आ गया। हमारा काम क्या है, देखो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर KO, हाँ क्या करना है, इसका फॉर्मूला जो है वो है
वेटेड कॉस्ट, या फिर अगर मैं ऐसे बोलूं सिग्मा वेटेड कॉस्ट बाय सिग्मा ऑफ प्रोपोर्शन। मतलब सिग्मा मतलब तो हमें बताइए क्या होता है, समेशन, सबको जोड़ के। तो यहाँ पे 12.7 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो मुझे KO मिल जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। सो दिस इज 12.7%। सो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वेट्स। ठीक है, जब हम मार्केट वैल्यू वेट्स को यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा मार्केट वैल्यू क्या है, 90,000 फॉर इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स का कुछ भी नहीं है, प्रेफरेंशियल कैपिटल 25,000 एंड डिबेंचर इज 15,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेनिंग द सेम। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, ठीक है, हमारे जो भी वैल्यूज़ लिखे हैं मार्केट वैल्यू का, ठीक है, जो भी मार्केट वैल्यू का वेट्स है उसे हम लोग यहाँ पे हूबहू लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमारा इक्विटी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो 90,000 है ना, दैट इंक्लूड्स रिटेन अर्निंग्स। तो इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, आप नहीं भी लिख सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा एक बार कोशिश करना, लिख सकते हो तो लिख लेना। कहने का मतलब ये है कि अगर अपने देखें यहाँ पे टोटल इन दोनों को मिला के कितना है, टोटल इन दोनों को मिला के है 60,000, 60K। ठीक है, अभी यहाँ पे 90,000 दिया हुआ है मुझे इन दोनों को मिला के। सो आई कैन से दैट कि ये 60,000 में 50 है मेरा ये और 10 है मेरा ये, यही तो दिया हुआ है। सो आई कैन से दैट कि अगर रेशियो किया जाए तो 5:1 का रेशियो है ना, 5:1 का रेशियो है। सो ये 90,000 को अगर हम लोग 5:1 के रेशियो में डिवाइड कर दें इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स के बीच में, तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से आएगा, 75,000 एंड 15,000। ठीक है, 75,000 एंड 15,000 ये आएगा। अगर हम लोग इसे नहीं करते हैं, अगर इसको हम लोग डायरेक्ट 90,000 भी लिख लेते हैं, द टोटल आंसर विल नॉट बी डिफरेंट, हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन, इफ इट इज़ डन, एग्जामिनर को अच्छा लगता है ना। अभी देखो आगे क्या है, प्रेफरेंशियल कैपिटल हमारा 25,000 दिया हुआ है एंड डिबेंचर इज गिवन एज 15,000 रुपीज़। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, अब हम इन सब को यहाँ पे लिखे जिस तरह से दिया हुआ है, एंड वी विल ऐड इट ऑल टुगेदर एंड वी आर गेटिंग 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 हमारा आ गया। अब हमारा काम है टू फाइंड आउट डिफरेंट प्रोपोर्शंस और वेट्स, हमें रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो हम लोग जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे या प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे, मैंने क्या कहा था, ये जो 1,30,000 है ना, ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है। ठीक है, इस 1 के हिसाब से आई हैव टू फाइंड आउट प्रोपोर्शन। सो 75,000 इज हाउ मच ऑफ 1,30,000। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन शुड बी 75,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000। तो 75,000 को कैलकुलेटर में आप डिवाइड करो 1,30,000 से, देखो आपको 0.5769 मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये 0.5769 आ गया। देन हम लोग 15,000 को डिवाइड करेंगे 1,30,000 से, वी आर गेटिंग 0.1154 एंड देन प्रेफरेंशियल कैपिटल 0.1923। ये कैसे आएगा, 25,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 एंड देन 15,000 को डिवाइड करो 1,30,000 से, वी विल गेट 0.1154। इन सबको अगर हम लोग टोटल करेंगे ना कैलकुलेटर में, तो वी विल गेट 1। आई टोल्ड यू द रीजन, बिकॉज 1,30,000 जो है वही तो हमारा 1 है, एंड वी आर फाइंडिंग आउट 1,30,000 के हिसाब से प्रोपोर्शंस। नाउ द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 15, 15, 10 एंड 8। दैट्स इट। तो हमारा काम क्या है, वी विल बी मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यूज, है ना,
0.5769 multiply it with 15, 0.1154 multiply it with 15, 0.192423 multiply it with 10 and 0.1154 multiply it with 1154. हमको जो मिलेगा यहाँ पे वो है ये सारे वैल्यूज़, ठीक है, हमें ये सारे वैल्यूज़ मिलेंगे 8.6535, 1.7310, 1.9230 and 0.9232. We will add all of these together, तो हमें weighted cost मिल गया. And I told you weighted average cost of capital या K को निकालने का फॉर्मूला, इन सब का टोटल weighted cost जो आया उसको and divided by हमारा total weights which is 1. So हमें मिल रहा है 13.23%. ठीक है. डिटर्मिनेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. सीपी लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर. यहाँ पे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दिया हुआ है. इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा यहाँ पे 25,000 शेयर्स है, ₹10 ईच. बुक वैल्यू के हिसाब से अगर तुम देखो तो बुक वैल्यू हमारा 25,000 इंटू 10 करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है. बट मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट. हाँ, मार्केट वैल्यू का मतलब होता है द वैल्यू एट विच इट इज सोल्ड इन द मार्केट. द मार्केट वैल्यू का मतलब हो गया द वैल्यू एट विच इट इज एक्सेप्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. लेकिन बुक वैल्यू का मतलब हो गया द वैल्यू विच वॉज प्रीडोमिनेंटली, मतलब पहले इसे जिस हिसाब से मार्केट में लॉन्च किया गया था. हम लोग बोलते हैं ना फेस वैल्यू क्या है, वो है हमारा बुक वैल्यू. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% का रेट है. 12% इज द रेट ऑफ डिविडेंड विच इज मेड बाय द कंपनी. 500 शेयर्स एट ₹100 ईच. 50,000 है मेरा बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू भी मेरा 50,000 है. देयर इज नो डिफरेंस. रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो जनरल रिजर्व है. वी कैन से दैट कि ये जनरल रिजर्व जो है ये मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स है. ये मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स है, ठीक है. रिटेन्ड अर्निंग इज 1,50,000 रुपीज एंड देन 14% डिबेंचर्स, 1500 डिबेंचर्स एट ₹100 ईच. 1,50,000 मेरा बुक वैल्यू है और वही मेरा मार्केट वैल्यू भी है. सो देयर इज ओनली वन डिफरेंस. मार्केट वैल्यू जो है इक्विटी शेयर का बुक वैल्यू से डिफरेंट है. द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज 1.5 विद एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 8%. तो देखो यहाँ पे दोनों ही एक्सपेक्टेड दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये मेरा D1 हो गया और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट विच इज माई G. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, preference shares are redeemable after 5 years at par, whereas debentures are redeemable after 6 years at premium of 5%. The tax rate of the company is 35%. So यहाँ पे solution दिया हुआ है, फिर भी we will be solving it individually. Let us see किस तरह से हमारा निकलता है. How do we use different information given in the question. So सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे हमारा information दिया हुआ है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे calculate करेंगे. So the very first cost of capital that we are going to calculate is कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. सो इक्विटी शेयर कैपिटल का हमारा फॉर्मूला क्या है, KE इक्वल D1 बाई P0 प्लस G. तो यहाँ पे देखो हमारा क्या क्या दिया हुआ है. D1 मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 पर शेयर, ठीक है. 1.5 इसको डिवाइड करना है P0 से. मेरा मार्केट प्राइस जो है वो 3,75,000 है ना, तो मार्केट प्राइस हमें निकालना है. सो मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पे P0, ठीक है, या फिर और मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे. मेरा कितना सारा शेयर्स है, 25,000 शेयर्स है. सो अगर मैं 3,75,000 जो कि मेरा टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स से, तो मुझे जो मिलेगा जो वैल्यू वो मेरा आ जाएगा आपका एक एक शेयर का प्राइस, ठीक है ना, मार्केट प्राइस. तो 3,75,000 को डिवाइड करना है 25,000 से, ठीक है. 15 आ गया मुझे, ठीक है, ये 15 आ गया. तो ये P0 में मैं यहाँ पे 15 बैठा दूंगा एंड माई ग्रोथ रेट इज 8% विच इज 0.08, ठीक है. कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं हम लोग. 1.5 को डिवाइड करना है 15 से, ठीक है, प्लस करेंगे 0.08 से, हमें मिल रहा है 0.18, ठीक है, हमें मिल रहा है 0.18. इसे अब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करने से हमें इन परसेंटेज फिगर मिल जाएगा, ठीक है. सो वी आर गेटिंग 18%.
तो मेरा KE मिल गया 18%। नेक्स्ट हम लोग को करना है KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो KP मेरा क्या होगा, हम लोग को फॉर्मूला पता है ना, D प्लस R माइनस एस बाई एन, फिर R प्लस एस बाई 2, पूरे को मल्टीप्लाई करना है 100 से। R का मतलब हो गया रिडेम्पशन वैल्यू, S का मतलब इशू प्राइस, N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे और डिविडेंड कितना दिया हुआ है, डिविडेंड यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग एक एक शेयर के हिसाब से करेंगे 100 के ऊपर। तो डिविडेंड 100 के ऊपर 12%, वी विल गेट 12 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू। यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट आफ्टर 5 years एट पार, वेयर एज एट पार है ना, तो पार में होगा तो 100 रुपए का 100 में ही होगा, तो 100। अच्छा यहाँ पे R माइनस एस होगा, है ना, मैंने गलती किया, R माइनस एस। ठीक है, 100 माइनस 100 बाई 5, पूरे को डिवाइड करना है 100 इशू प्राइस, ठीक है, प्लस 100 बाई 2 इंटू 100। सो कितना आता है देखते हैं हम लोग। तो ये तो मेरा ज़ीरो आ जाएगा नीचे, 200 बाई 2 अगेन वो 100 ही आएगा। सो 12 बाई 100 इंटू 100, तो ये मेरा 12% आ रहा है आंसर, ठीक है। सो इट इज़ कमिंग एज 12%। तो अब हम लोग KD निकालते हैं। KD का हमारा फॉर्मूला क्या है, KD का फॉर्मूला है I1 माइनस टी प्लस R माइनस एस बाई एन, फिर R प्लस एस बाई 2, पूरे को मल्टीप्लाई करना है 100, ठीक है, पूरे को मल्टीप्लाई करना है 100। तो एक एक करके इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं। देखो अभी आ जाएगा आंसर हमारा। इंटरेस्ट रेट ये 14 है 100 रुपये के ऊपर, ठीक है। 1 माइनस 35% टैक्स है तो 0.35 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू यहाँ पे 5% प्रीमियम है ना, 5% प्रीमियम में वो रिडीमेबल हो रहा है। यहाँ पे देखो 6 साल के बाद 5% प्रीमियम है, तो 100 रुपये का है, अभी इशू हुआ, तो 5% प्रीमियम मतलब वो 105 में होगा रिडेम्पशन, minus S is my issue price which is 100, and the life of the debenture is 6 years divided by 105 plus 100 divided by 2, पूरे को मल्टीप्लाई करो 100। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं पूरी तरह से, कितना आता है, 14 मल्टीप्लाइड विथ 0.65, सो वी आर गेटिंग 9.1, है ना। 1 माइनस 0.35 इज 0.65, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको 0.65 से मल्टीप्लाई किया 14 को। देन 105 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 6 करना, ये आएगा मेरा 0.833, पूरे को डिवाइड करना है 105 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा मेरा 102.5। तो 102.5 इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो वी आर गेटिंग कैलकुलेट करते हैं 9.1 प्लस 0.833 डिवाइडेड बाई 102.5, पूरे को मल्टीप्लाई करो 100 से, तो ये मेरा आ रहा है 9.69%, 9.69%। सो दिस इज हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग आवर डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही सीख रखा था, ठीक है, ये हम लोग पहले ही सीख रखे थे। तो हम लोग को क्या क्या मिला, हम लोग को मिला 18%, वी गॉट 18% ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स 12% एंड 9.69% हमारा मिल गया फॉर डिबेंचर्स का, ठीक है। सो यहाँ पर भी उसी तरह से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है, वो हम लोग के पास है, हम लोगों ने सॉल्व तो कर ही लिया, तो ज़रूरत नहीं है ये आंसर। हम लोग को अभी काम क्या है, हम लोग का काम है टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
है ना, यही हमारा क्वेश्चन था। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये टेबल बनाएंगे, है ना। वी विल बी प्रिपेयरिंग दिस टेबल एंड रिमेंबर यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू करना है, ठीक है, मार्केट वैल्यू करना है। तो अपने क्या करेंगे, अपने मार्केट वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, मार्केट वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे ना। मार्केट वैल्यू को कैसे लिखना है, मार्केट वैल्यू को कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, व्हेन वी आर लुकिंग एट द क्वेश्चन वी कैन सी दैट 1,50,000 और 2,50,000, 1,50,000 और 2,50,000 ये दोनों वैल्यू, ये वाली और ये वाली वैल्यू, ये हमारा इक्विटी से बिलोंग करता है ना, एक रिटेन अर्निंग से और एक इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो हमारा ये जो 3,75,000 जो मार्केट वैल्यू है ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इंक्लूड्स रिटेन्ड अर्निंग्स ऑल्सो विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू इन द लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोग ये 3,75,000 को डिवाइड करेंगे इन बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स इन द रेशियो ऑफ 25:15, ठीक है। सो 25:15 में हम लोग जब 3,75,000 को डिवाइड करेंगे ना, सो वी विल बी गेटिंग दीज वैल्यूज़, ठीक है। क्या करना है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ एक बार तुम लोग के साथ। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास 3,75,000 है इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू, इसको डिवाइड करना है 25 और 15 का टोटल हो गया 40, डिवाइड करना है 40 से, मल्टीप्लाई करो 25 से, तो देखो वी आर गेटिंग 234,375। सो ये वैल्यू आ गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का, ठीक है। देन अगेन 3,75,000 डिवाइडेड बाय 40, मल्टीप्लाई करना है रिजर्व्स एंड सरप्लस या फिर जनरल रिजर्व या फिर रिटेन अर्निंग्स का जो प्रोपोर्शन था पहले वाला में 15, तो 1,40,625। सो ये दोनों वैल्यू मिल गया मुझे। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 50,000 गिवन इन द क्वेश्चन, डिबेंचर इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन एज 1,50,000। अभी क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था, हम लोग को अब प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। मार्केट वैल्यू हमारा ये सारा आ गया 5,75,000 इज द टोटल वैल्यू, ठीक है। अब ये 5,75,000 को कंसिडर करना है एज 1, है ना, एज 1। तो 234,375,000 is how much of 5,75,000? So in calculator, just type 234,375 divided by 5,75,000, which is total of the amount column as per market value. So we are getting 0.4076. So ये 0.4076 आ गया for equity share capital. Then अगेन करना है 140,625 डिवाइडेड बाई 5,75,000, मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई नहीं करना है सॉरी, तो ये आ गया मेरा 0.244। अच्छा, एक शॉर्टकट भी है इसका कैलकुलेट करने का। मैं 1,46,25 को मल्टीप्लाई किया था ना टोटल से, मतलब मैंने क्या किया था 1,40,000 डिवाइडेड बाई 575 करा था मैंने। अगर मैं वापस मल्टीप्लाई करता हूँ 140,625, अच्छा छोड़ो वो शॉर्टकट। नेक्स्ट है मेरा 50,000 डिवाइडेड बाय 5,75,000, वी आर गेटिंग 0.0869 विच इज़ 870.870, एंड देन 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5,75,000, ये आ रहा है मेरा 0.26। तो ऑल दीज वैल्यूज आई गॉट ऑल द प्रोपोर्शंस, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने कैलकुलेट कराई अभी, सो 18, 12 एंड 9.69%। सो दीज वैल्यू 18 का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस का हमारा सेम वैल्यू आएगा अनटिल एंड अनलेस कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि नहीं। हम हमारे आने वाले क्वेश्चंस में वो सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन, उसको उस हिसाब से हम लोग बाद में करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% है, डिबेंचर्स भी है, बस इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन सब को प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दो एंड वी विल गेट दीज वैल्यूज, ठीक है, इन दिस वैल्यूज। तो 0.4076 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 18 से तो 7.3368 आएगा, एंड देन 0.2445 मल्टीप्लाई करो 18 से, वी आर गेटिंग 4.401, एंड देन 0.087
ज़ीरो को अगर मैं करता हूँ मल्टीप्लाई विथ 12, आई एम गेटिंग 1.044, देन 0.2609 को मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं 9.69 से, तो आई एम गेटिंग 2.52. सो ऑल दीज वैल्यूज आई गॉट. अभी हमारा काम क्या है, वेटेड कॉस्ट, ये सबको जोड़ दो, इन सबको प्लस कर दो, हमें मिल रहा है 15.3099. बस डिवाइड करना है. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था टोटल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स. टोटल ऑफ वेटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, क्या बताया था मैंने, सिग्मा बताया था ना मैंने, सिग्मा वेटेड कॉस्ट, या फिर टोटल ऑफ वेटेड कॉस्ट बाय टोटल ऑफ वेट्स. ठीक है, तो ये मेरा WACC आएगा इसमें, है ना, विच इज 15.31%. ठीक है.